خالد کی یہ چال صرف اس حد تک کامیاب رہی کہ اس کے 3-4 گھڑ سوار خندق فلانگ گئے۔ ان میں خالد سب سے آگے تھا۔ مسلمان پہرے داروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ قریش کے جو سوار ابھی خندق کے پار تھے ان پر مسلمانوں نے اتنے تیر برسائے کہ انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خالد اور اس کے سواروں کے لیے مسلمانوں کے گھیرے سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا جو خالد نے گھوڑا دوڑا دوڑا کر اور پیترے بدل بدل کر لڑے۔ اس کے سوار بھی تجربے کار اور پھرتیلے تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا۔ خالد اب دفاعی معرکہ لڑ رہا تھا۔ اس نے کئی مسلمانوں کو زخمی کیا جن میں سے ایک شہید ہو گیا۔ آخر اسے نکلنے کا موقع مل گیا اور اس کا گھوڑا خندق کو فلانگ آیا۔ اس کے جو سوار زندہ رہ گئے تھے وہ بھی خندق فلانگ آئے۔ اس کے بعد قریش میں سے کسی نے بھی خندق کے پار جانے کی جرت نہ کی۔ اکرمہ اور خالد کی ناکامی کے بعد قریش اور ان کے دیگر اتحادی قبائل کے لشکر میں مایوسی جو پہلے ہی کچھ کم نہ تھی اور بڑھ گئی، خوراک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ابو سفیان جو اپنے اور دیگر تمام قبائل کے لشکر کا سالار اعلیٰ تھا، پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا تھا۔ خالد، اکرمہ اور سفیان نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کا لشکر زندہ بیدار ہے، یہ کارروائی جاری رکھی کہ وقتاً فوقتاً خندق کے قریب جا کر مسلمانوں کی خیمہ گاہ پر تیر برساتے رہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے تیر اندازوں کو خندق کے قریب پھیلا دیا، جو اہل قریش کے تیر اندازوں پر جوابی تیر اندازی کرتے رہے۔ تیروں کے تبادلے کا یہ سلسلہ صرف ایک دن صبح سے شام تک چلا۔ اہل قریش اور غطفان اور دیگر قبائل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے آئے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے رسول تھے۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ خدا اپنے رسول کو کیسے مایوس کرتا؟ اس کے علاوہ مدینے کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یہ دعائیں رائیگاں کیسے جاتی؟ 18 مارچ 627 بروز منگل مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی۔ سردی کھانسی تھی، ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز تند تھی کہ خیمے اڑنے لگے۔ جھگڑ بڑے ہی سرد تھے۔ آندھی کی تندی اور اس کی چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں توڑنے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ صلح کی پہاڑی کی اوٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکہ کے لشکر کو۔ قریش کھلے میدان میں تھے، آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی، خیمے اڑ گئے یا لپیٹ دیے گئے تھے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھے۔ ان کے لیے یہ آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی۔ اس کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھا۔ اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا۔ ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مورخ ابن حسام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے۔ مکہ کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکہ کی طرف دوڑایا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا۔ تمام لشکر جسے مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ کرتے دیکھ اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن عاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔ ابو سفیان نے ایسے ہی حفاظتی انتظام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آج خالد مدینہ کی طرف اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا۔ اسے سیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی پسپائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑ جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔
जिस दुश्मन को खुदा ने भगा दिया था उसके पीछे जाना दानिशमंदी नहीं थी। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से चंद एक आदमियों को बुलंदियों पर खड़ा कर दिया गया था कि वो दुश्मन पर नज़र रखें, ऐसा ना हो कि दुश्मन कहीं दूर जाकर रुक जाएं और मुनज्जम होकर वापस आ जाएं। आंधी इतनी मिट्टी और रेत उड़ा रही थी कि थोड़ी दूर तक भी कुछ नज़र नहीं आता था। बहुत देर बाद 3-4 मुसलमान घुड़सवार उस जगह से खंदक फलांग गए जहां से अकरमा और खालिद के घोड़ों ने खंदक फलांगी थी। वो दूर तक चले गए, उन्हें उड़ती हुई गर्द और रेत के सिवा कुछ भी नजर ना आया। वो रुक गए लेकिन वापस ना आए। शाम से कुछ देर पहले आंधी का जोर टूट गया और झक्कड़ थम गए। फिजा साफ हो गई और नज़र दूर तक काम करने लगी। दूर उफक पर जमीन से गर्द के बादल उठ रहे थे। वो अहले कुरैश और उनके इत्तेहादी कबाइल की पसपाई की गर्द थी जो डूबते सूरज की आखिरी किरणों में बड़ी साफ नजर आ रही थी। यह गर्द मक्का को जा रही थी। ताकुब में जाने वाले मुसलमान सवार उस वक्त वापस आए जब रात बहुत गहरी हो चुकी थी। खुदा की कसम, उन्होंने वापस आकर बताया, वो जो हमारे अकीदे को तोड़ने और मदीने की ईंट से ईंट बजाने आए थे, वो मदीना से इतनी वहशत लेकर गए हैं कि रुक नहीं रहे, कहीं पड़ाव नहीं कर रहे। क्या रातों को मुसाफिर पड़ाव नहीं किया करते? क्या लश्कर रातों को भी चलते रहते हैं? वही चलते रहते हैं जो मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हों। अहादीस और मुअर्रिखों की तहरीरों के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यकीन हो गया कि दुश्मन घबराहट के आलम में भागा है और ऐसा इम्कान ख़त्म हो चुका है कि वो मुनज्जम होकर वापस आ जाएं, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर से तलवार खोली, खंजर उतार कर रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करके गुस्ल किया। इस रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो मदीना वालों के लिए फतह व नुसरत और मुसर्रत व सादमानी की शुबा थी। हर तरफ अल्लाह अकबर और खुशियों के नारे थे। सबसे ज़्यादा खुशी औरतें और बच्चे मना रहे थे जिन्हें छोटे छोटे किलों में बंद कर दिया गया था। वो खुशी से चीखते चिल्लाते बाहर निकले। मदीना की गलियों में मुसलमान बहुत मसरूर फिर रहे थे। फतह के इस जश्न में बनु करीजा के यहूदी भी शामिल थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अमन व अमान में रहने के इवज कुछ मुराआत दे रखी थी। ज़ाहिरी तौर पर वो अपने आप को मुसलमानों का दोस्त कहते और दोस्तों की तरह रहते थे। अहले कुरैश की पसपाई पर वो मुसलमानों की तरह खुशियां मना रहे थे, लेकिन उनका सरदार काब बिन असद अपने किले नुमा मकान में बैठा था। उसके पास अपने कबीले के 3 सरकदी यहूदी बैठे थे और उस वक्त की गैर मामूली तौर पर हसीन यहूदन युहावा भी वहाँ मौजूद थी। वो गुज़िश्ता शाम अहले कुरैश की पसपाई की खबर सुनकर आई थी। क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि हमने मुसलमानों पर हमले नहीं किए? काब बिन असद ने कहा। मुझे नईम बिन मसूद ने अच्छा मशवरा दिया था। उसने कहा था कि कुरैश से मुआहदे की जमानत के तौर पर चंद आदमी यरगमाल के लिए मांगो। उसने ये भी कहा था कि कुरैश इससे दुगना लश्कर ले आए तो भी खंदक अबूर नहीं कर सकते। मैंने नईम का मशवरा इसलिए कबूल कर लिया था कि वो अहले कुरैश में से है। वो अहले कुरैश में से नहीं, एक यहूदी ने कहा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में से है। खुदाए यहूदा की कसम, तुम्हारी बात सच नहीं हो सकती, काब बिन असद ने कहा। वो अहले कुरैश के साथ आया था मगर उनके साथ गया नहीं। उसी यहूदी ने कहा, मैंने कल शाम उसे मदीना में मुसलमानों के साथ देखा है। उस वक्त तक अहले कुरैश का लश्कर मदीना से बहुत दूर जा चुका था। फिर तुम्हें किसने बताया है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में से है? काब ने कहा, मैं ऐसी बात को क्यों सच मानूंगा जो तुमने किसी से पूछी नहीं? मैंने अपने एक मुसलमान दोस्त से पूछा था, यहूदी ने कहा। मैंने नईम को देखकर कहा था, क्या मुसलमान अहले कुरैश की जंगी कैदियों को अब खुला रखते हैं? मेरे दोस्त ने जवाब दिया था कि नईम कभी का इस्लाम कबूल कर चुका है, उसे मदीना में आने का मौका अब मिला है। फिर उसने हमें मुसलमानों से नहीं बल्कि मुसलमानों को हमसे बचाया है, काब बिन असद ने कहा। उसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। अगर हम कुरैश की बात मान लेते तो मुसलमान हमारे दुश्मन हो जाते। एक और यहूदी ने कहा, तुम यही कहना चाहते हो ना काब, मुसलमान फिर भी हमारे दुश्मन हैं। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए मजहब को यहीं पर ख़त्म करना है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ख़त्म कर देगा। क्या तुम देख नहीं रहे कि ये मजहब जिसे ये लोग इस्लाम कहते हैं कितनी तेज़ी से मकबूल होता जा रहा है? तीसरे यहूदी ने, जो मुअम्मर था, कहा, हमें इसके आगे बंद बांधना है, इससे रोकना है। लेकिन कैसे? काब बिन असद ने पूछा। कत्ल, मुअम्मर यहूदी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल। ऐसी जुर्रत कौन करेगा? काब बिन असद ने कहा। तुम कहोगे कि वो एक यहूदी होगा। अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल में नाकाम हो गया
तो बनु कैनका और बनु करीज़ा का अंजाम देख लो। मुसलमानों ने इन्हें जिस तरह कत्ल किया है और इनमें से जिंदा बच रहने वाले जिस तरह दूर दराज के मुल्कों में भाग गए हैं वो न भूलो। खुदाए यहूदा की कसम, मुअम्मर यहूदी ने कहा, मेरी अक्ल तुमसे ज़्यादा काम नहीं करती तो तुमसे कम भी नहीं। तुमने जो आज सोचा है वो मैं और लेस बिन मोशान बहुत पहले सोच चुके हैं। कोई यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने नहीं जाएगा। फिर वो कौन होगा? वो कबीला कुरैश का एक आदमी है, बूढ़े यहूदी ने जवाब दिया। लेस बिन मोशान ने उसे तैयार कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ये काम कर दिया जाए। अगर तुम लोग भूल नहीं गए कि मैं बनु करीजा का सरदार हूँ तो मैं उस काम की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ जो मुझे मालूम ही ना हो कि कैसे किया जाएगा। काब बिन असद ने कहा, और मुझे कौन बताएगा कि उस आदमी को इतना ख़तरनाक काम के लिए कैसे तैयार किया गया है? क्या उसे अबू सुफियान ने तैयार किया है? खालिद बिन वलीद ने तैयार किया है? सुनो काब, बूढ़े यहूदी ने कहा, और यहूदी हसीना युहावा की तरफ देखा। मैं ये बात लेस बिन मोशान की मौजूदगी में सुनाऊं तो क्या अच्छा ना होगा? युहावा ने कहा, इस बात में इस बुजुर्ग का अमल दखल ज़्यादा है। हम उस बूढ़े जादूगर को कहाँ से बुलाएं? काब बिन असद ने कहा, हम तुम पर एतबार करते हैं, वो यही है। बूढ़े यहूदी ने कहा, हम उसे साथ लाए हैं और हम उसे भी साथ लाए हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। हम सबको उम्मीद थी कि कुरैश, गतफान और इनके दोस्त कबाइल इस्लाम का नाम और निशान मिटा देंगे, मगर हर मैदान में उन्होंने शिकस्त खाई। हमने उन्हें मदीना पर हमला के लिए उकसाया था, वो यहाँ से भी भाग निकले। खुदाए यहूदा की कसम, तुमने मुसलमानों पर अकब से हमले न करके बहुत बुरा किया है। मैं इसकी वजह बता चुका हूँ, काब बिन असद ने कहा। वजह सही थी या गलत? मुअम्मर यहूदी ने कहा, वक्त हाथ से निकल गया है, अब हम कुरैश की फतह का इंतजार नहीं कर सकते। उसने युहावा से कहा, लेस बिन मोशान को बुला, दूसरे को अभी बाहर रख। युहावा कमरे से निकल गई। वापस आई तो उसके साथ लेस बिन मोशान था। वो एक बूढ़ा यहूदी था जिसकी उम्र 70 बरस के दरमियान थी। उसके सर और दाढ़ी के बाल दूध की तरह सफ़ेद हो चुके थे। दाढ़ी बहुत लंबी थी। उसके चेहरे का रंग सुर्ख व सफ़ेद था। उसने ऊंट के रंग की कवा पहन रखी थी। उसके हाथ में लंबा असा था जो ऊपर से सांप के फन की तरह तराशा हुआ था। लेस बिन मोशान को यहूदियों में जादूगर के नाम से शोहरत हासिल थी। सोबदेबाजी और काले इल्म में वो महारत रखता था। वो मक्का और मदीना के दरमियान किसी गांव का रहने वाला था। उसके मुतालिक बहुत सी रिवायतें मशहूर थीं कि जिनमें से एक ये थी कि वो मुर्दे को थोड़ी सी देर के लिए जिंदा कर सकता है और वो किसी भी मर्द या औरत को अपने ताबे करने की ताकत रखता है। यहूदी उसे अपना पीर मुर्शिद समझते थे। वो जहां दीदा और आलिम फाजिल था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सब उसकी ताजीम को उठे। वो जब बैठ गया तो सब बैठ गए। खानदान मोशान की अजमत से कौन वाकिफ नहीं? काब बिन असद ने कहा, खुदाए यहूदा की कसम, हम में से कोई भी आपको यहाँ बुलाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। युहावा शायद आपको ले आई है। मैं पैगंबर नहीं काब बिन असद, लेस बिन मोशान ने कहा। मैं ये खूबसूरत अल्फाज सुनने का आदी नहीं और ताजीम व एहतराम का वक्त भी नहीं। कोई ना बुलाता तो भी मुझे आना था। तुम लोग अपने फ़र्ज की अदायगी में बहुत वक्त जाया कर चुके हो। तुमसे ये लड़की अच्छी है जिसने वो काम कर दिया है जो तुम्हें करना चाहिए था। मुअज्जिज मोशान, काब बिन असद ने कहा, हमने अभी इस इंतहाई इक़दाम की सोची नहीं थी। अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का खौफनाक इरादा करते भी तो युहावा को इस्तेमाल ना करते। हम इतनी खूबसूरत और ऐसी जवान लड़की को इस्तेमाल नहीं कर सकते।